Hello everyone, online class 8th, subject SST, lesson 24, economic development of Australia, content. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास, वेस्ट डिजार्ट एंड वाइड प्लेटू आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन कंटेंट. दिस इज ए resource rich content. The most part of Australian content receive very scanty rains. The forest and animals are of different types and there is huge minerals wealth here. With the modern scientific technology, the resource of Australian content have been properly used. The Australian content ranks among the major industrial countries today. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विशाल मरुस्थल और विस्तृत पठार पाए जाते हैं। यह एक साधन संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप के अधिकांश भाग में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वन प्राणी अनेक प्रकार के हैं और खनिज संपदा बहुत है। आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से यहाँ के संसाधनों का अच्छा उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाता है। एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, कृषि एवं पशुपालन. Due to the paucity of rains, maximum part of Australia remain dry. Hence, only 4% of the land is used for farming. Farming is done mostly in southeastern, and eastern coastal plains, as rainfall is enough in this area. However, in the areas of scanty rainfall, farming is done by irrigation system. ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग वर्षा के अभाव में सूखा रहता है। इसी कारण केवल 4% भूभाग पर खेती होती है। अधिकतर खेती दक्षिणी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी तटीय मैदानों भागों में होती है। इन भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ सिंचाई द्वारा खेती की जाती है। Australia is also an agriculture continent like India. Wheat is the most important crop of Australia. Half of the total land under cultivation is used for producing wheat. There are big farms here. All the farming work are done by machine. The wheat is produced in winter. The main wheat producing areas are down plains, coastal western southern Australia and Canterbury plains of New Zealand. Here the fertile soil, the temperature, climate and normal rains are suitable for the wheat crop. The wheat is exported from here on large scale. Besides wheat, barley, oats and maize are also main crops here. Sugar cane, tobacco and cotton are produced in क्वींसलैंड. भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी कृषि प्रधान महाद्वीप है। गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ बहुत बड़े बड़े कृषि फार्म हैं कि खेती का सारा काम मशीनों द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं शीतकाल में होता है। गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र डाउन्स के मैदान, तटीय पश्चिम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में होता है। यहाँ गेहूं की फसल में अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा होती है। यहाँ से गेहूँ बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। गेहूँ के अतिरिक्त जौ, जई, मक्का भी पैदा किया जाता है। गन्ना, तंबाकू और कपास क्वींसलैंड में पैदा होता है। A variety of fruits are also grown in Australia in the tropical region of North. Banana, papaya and pineapples are produced, while in South apple, pear and grapes are grown. Is evidence the wine made of grapes is exported. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत में होती है। महाद्वीप के उत्तर में उष्णकटिबंधीय भाग में अनानास, केला, पपीता खूब होते हैं। दक्षिण के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में सेब, नाशपाती, नींबू, नारंगी, आड़ू और अंगूर की खेती होती है। अंगूर से शराब बनाकर निर्यात की जाती है। In the eastern and western regions of Australia, cattle rearing is popular. This continent is famous for cattle rearing. The cattle are reared scientifically. Some of the animals are reared for milk, butter, and some for wool and meat. These animals are mostly reared in
Queensland, Southeast regions, Western and Eastern regions in Australia. Australia content is the biggest exporter of butter and cheese. ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण जलवायु वाले पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। यहाँ महाद्वीप पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पशुओं के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है। कुछ पशु दूध, मक्खन और पनीर के लिए, तो कुछ पशुओं के मांस और ऊन के लिए पाला जाता है। वह पशु क्वींसलैंड, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम व पूर्वी क्षेत्रों में पाले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मक्खन और पनीर का बड़ा निर्यातक देश है। शिप रेयरिंग, भेड़ पालन। Sheep are mainly reared for wool in the Australia. Few sheep are reared for meat. Also, Australia has the highest number of sheep than any other country in the world. The sheep are kept in big farm houses, which are called sheep rearing center. These centers spread is several kilometers. The regions lying near Murray Darling rivers are most suitable for sheep rearing. New South Wales, Victoria, Queensland, and New Zealand are chief centers for sheep rearing. Generally, merino sheep are reared for wool. Very high quality wool is achieved from these sheep. The laborers working here are called jackaroos. They garage sheep are attend them. The wool is taken by machines from the sheep. Modern machines are used to get wool from the sheep here. Large number of skilled laborers are needed to cut wool from the sheep. The wool is graded and pressed into wells and taken to station and ports. Australia content is the biggest wool producer and exporter in the world. Like Australia, cattle are largely reared in New Zealand for milk and meat. The cattle rearing is the base of New Zealand economy. The cow, sheep, and pigs are man-tamed cattle. Nearly 18 crore sheep are reared in Australia content. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ों का मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। कुछ भेड़ें मांस के लिए भी पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े बाड़ों, फार्म हाउस में रखा जाता है, जिसे भेड़ पालन केंद्र कहते हैं। यह केंद्र कई किलोमीटर क्षेत्रों में फैले होते हैं। यहाँ के मरे डार्लिंग नदियों के बीच फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड एंड न्यूजीलैंड में भेड़ें पाली जाती है। यहाँ ऊन के लिए सामान्यतः मैरिनो जाति की भेड़ें पाली जाती हैं। इनसे बहुत अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त होते हैं। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जैकारू कहते हैं। ये भेड़ों को चराने और उनकी देखभाल करने के काम में करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ों से ऊन उतारने निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। भेड़ों को ऊन उतारने के लिए अधिक मात्रा में कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है। ऊन की गांठें बनाकर स्टेशनों और बंदरगाहों को भेज दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक एवं निर्यातक देश है। न्यूजीलैंड के द्वीपों में भी ऑस्ट्रेलिया के समान ही दुधारू और मांस तथा ऊन प्रदान करने वाली पशुओं को बड़ी मात्रा में पाला जाता है। वहाँ के आर्थिक आधार पर पशुपालन है। गाय, भेड़ें, सूअर मुख्य पालतू पशु हैं। इन महाद्वीप में लगभग 18 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। मिनरल्स, खनिज। इन the major part of Australia there are mountains, plateau or desert. It is one of the oldest land in world. There are mines of iron ore, bauxite, manganese and gold. Besides they silver, uranium, thorium, copper and tin mines are in abundance in Australia. Kalgoorlie and Coolgardie are the famous gold mines in Western Australia. There are also big mines in Queensland. Bauxite is in plenty in Australia, but a fairly good amount is used by its own industries, hence it is less exported. Aluminium is made of bauxite. Opal, a
milky colors. Metal is also found here, which is used in manufacturing of bangles and rings. खनिज। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश भाग पहाड़ी, पठारी और मरुस्थलीय है। यह संसार के प्रसिद्धतम स्थलखंडों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज एवं सोने के भंडार हैं। इसके अतिरिक्त चांदी, यूरेनियम, थोरियम, तांबा, टीन के भी खदानें हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कुलगंडी सोने की संसार प्रसिद्ध खदानें हैं। क्वींसलैंड में भी बड़ी बड़ी खदानें हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट अधिक होता है। इसकी मात्रा देश के कारखानों में होती है, अतः निर्यात कम हो पाता है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम बनाया जाता है। ओपल दुधिया रंग की धातु भी यहाँ पाई जाती है, जिसका उपयोग चूड़ियाँ और अंगूठी बनाने में होता है। रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संसाधन। द मेन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन ऑस्ट्रेलिया आर कोल, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस. कोल इज फाउंड इन द माइंस ऑफ न्यू साउथ वेल्स, Queensland, and New Zealand. There are deposits of natural oils and gas in the Downs and Western Coastal Australia. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऊर्जा का संसाधनों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मुख्य हैं। कोयला न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड की खदानों से निकाला जाता है। पश्चिम तटीय ऑस्ट्रेलिया और डाउन्स क्षेत्र में भी खनिज तेल व गैस के भंडार हैं। थैंक यू।